Hello everyone, welcome to my UPSC. Hope you guys are doing good. Today we are going to discuss this ongoing series Current Affairs Most Important MCQs 2021 series. We have already discussed part 1 and part 2 of this series. Now we will discuss part 3 of this series. The link of part 1 and part 2 you can check in the description. Let's begin. This is part 3rd, part 1st and part 2 we have already covered. We will discuss MCQs from May 2020 to July 2021 in a continuous process as a part 1 part 2 till the this series is completed, and we have covered some most important current affair questions from last 1 or 1.5 year. These are very useful for all the competitive exams including civil services prelims, state PSC exams and all other competitive exams. Let's begin. Question number first. Often seen in news, Biotech Kisan program. Biotech Kisan program is launched by. So Biotech Kisan program, it is a farmer centric scheme for farmers, developed by the farmers and developed with the farmers. ये आपको ध्यान रखना है. This scheme is a farmer centric. Farmer centric, by the farmer, for the farmer. This is developed by and with farmers under the department of which department developed this Biotech Kisan program? It is developed under the Department of Biotechnology. Department of Biotechnology. एंड बायोटेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? बायोटेक्नोलॉजी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये आपको क्लियर होना चाहिए. बायोटेक किसान इज फॉर फार्मर सेंट्रिक, बाय द फार्मर, फॉर द फार्मर, और इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिशन लैंटाना इज ए स्पेशल ड्राइव टू uproot the invasive lantana bushes was launched in which of the following stage? So this mission lantana, ये special drive to uproot the invasive lantana bushes, it was launched in Rajasthan. It is a special drive to uproot the invasive lantana bushes in the famous which place? Lantana. Mission Lantana is associated with Rajasthan, Udaipur. Which place? Sajjangarh Wildlife Sanctuary. And what is the aim of this mission? To ecological restoration of grassland and save the biodiversity. जो grassland है उसका ecological restoration
ये आपको ध्यान रखना है. इट इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज. Mission Lantana is associated with Rajasthan, and those who are preparing for RPSC RAS एग्ज़ाम उनके लिए इम्पोर्टेंट है. मिशन लांटाना इज एसोसिएटेड विथ सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर. नेक्स्ट वन, प्लास्टिक पार्क स्कीम. Consider the following statements regarding plastic park scheme. Till now, 5 states of India are working on the plastic park scheme. This statement is incorrect because till now there is a 6 states, not 5, 6 states of India. It is being implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This statement is also incorrect because it is implemented by the Ministry of Chemical and Fertilizer. So both these statements are incorrect and we have to identify correct. So neither one nor two is correct. अब अगर आपको ये देखना है कि भाई ये 6 जो प्लास्टिक पार्क से हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. देयर इज 2 in MP and 1 in ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, आसाम. ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु and Assam. Total 6 plastic park schemes. MP में plastic park at Tamat has completed physical infrastructure and purchase of equipment for common facility center is in under progress. 1 unit is functional in the plastic park. So MP में जो ये 2 हैं, एक है तामट and other is at Bilawal. It is at implementation stage and work of development of physical infrastructure is in progress. इसके बारे में आप और थोड़ा पढ़ना. उड़ीसा में जो ये है ये पारादीप, झारखंड इज एट देवघर, तमिलनाडु थिरुवल्लुवर एंड आसाम तिनसुकिया. ओके, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज दिस वन. Recently, bamboo clusters were launched in 9 Indian states for promotion of bamboo clusters. Which of the following option covers these states? We are talking about bamboo clusters. And bamboo clusters किसके अंडर में आता है? Bamboo clusters is associated with पंचायती राज. पंचायती राज. Under the which ministry? Agriculture and Farmers. Union Ministry of
एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स. सो विच स्टेट्स, 9 स्टेट्स कौन से हैं उनकी है जो रिसेंटली जो पंचायत ये इनोग्रेटेड बाय द वर्चुअल मोड. ये जो टोटल स्टेट्स हैं इनमें दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ये स्टेट्स हैं गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड कर्नाटक. ये लोगो वाज ऑल्सो रिलीज्ड ऑन नेशनल बम्बू मिशन. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये थोड़ा जो बम्बू प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ बम्बू प्रोडक्ट्स, इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया है. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. युवा initiative was launched by which nodal agency of United Nations? So this mission is for Indian youth. This mission is for Indian youth launched by the UN agency UNICEF. जो यूनिसेफ है उसने लॉन्च किया है ये. It is a unique initiative which aims to groom India's youth into change leaders of tomorrow by providing them the mindset and skill set to flourish in a rapidly changing world. So जो स्किल डेवलपमेंट या चेंज लीडर्स ऑफ टुमारो बाय टू प्रोवाइड देम द माइंड सेट एंड स्किल सेट. जो इंडियन यूथ है उनको माइंड सेट, स्किल सेट एटसेट्रा ये यूनिसेफ ने शुरू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HSTDV टेक्नोलॉजी. देखिए पहले तो आपको ये HSTDV टेक्नोलॉजी क्या है. इट इज ए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल. HSTDV hypersonic, this is hypersonic टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल. ये आपको जो कुछ जैसे बैंक, रेलवेज वगैरह के एग्जाम्स हैं उनमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, याद रखना इसको. अब इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता है. स्टेटमेंट्स कौन सा सही है. इट इज डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वन इज द राइट आंसर. रिसेंटली HSTDV was successfully launched from Sriharikota. So this statement is incorrect. First one is the right answer because it was successful launched from not from Harikota, but it was launched from Dr. APJ अब्दुल कलाम, जो व्हीलर आइलैंड है जिसका नाम चेंज करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रख दिया है, वहाँ से लॉन्च किया है इसको, व्हीलर आइलैंड से. व्हीलर आइलैंड कहाँ पे है? ओडिशा में. ये ध्यान रखना है. यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे, या फिर स्टेट PSC में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंडिया हैज साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने इनमें से किसके साथ किया हुआ है? फर्स्ट जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका। अभी रिसेंटली एक नेगोशिएशन हुआ है आफ्टर डिकेड्स, और ये नेगोशिएशन किसके साथ हुआ है? ये नेगोशिएशन हुआ है RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप was finally inked with the participation of 15 member countries। इसने टोटल 15 जो कंट्रीज है उनके साथ एक नेगोशिएशन किया है, और इन 15 कंट्रीज में 10 कंट्रीज आसियान के हैं, along with ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। 10 आसियान कंट्रीज with Australia, China, Korea, Japan and New Zealand. It is to be noted that this regional comprehensive economic partnership is the world's largest free trade agreement. This is the world's largest free trade agreement. So अभी जो इंडिया ने साइन किया है यही एग्रीमेंट साइन किया है 15 कंट्रीज वाला ये। So first, second and third, all these options are correct options. D is the right answer. Next question. ESG funds are related to. What is ESG? ESG फंड की बात कर रहे हैं। ये तो E इज फॉर एनवायरमेंट एम्पैथी, S फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड G स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिस वन इज द राइट आंसर। यह आपको ध्यान रखना, आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर डेडिकेटेड टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया। शिक्षा की बात हो रही है, इनमें से कौन से इनिशिएटिव है जो एजुकेशन से रिलेटेड है टू इम्प्रूव द एजुकेशन इन इंडिया? दीक्षा, यस, दिस वन इज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। दीक्षा मोबाइल ऐप। नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज ए customizable platform which is currently being used by teachers, both government and private institutes across the nation, for all the standards to help the students learn several concepts. The portal is accessible in many languages for easy understandability of the users. This is all about the Diksha mobile app. Swayam, yes. Pragyata, yes. प्रज्ञाता भी एजुकेशन से एसोसिएटेड है। सो ऑल दीज थ्री आर द इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेकेदातु प्रोजेक्ट, this project is recently, Mekedatu project recently government of Karnataka
प्रेशराइज सेंट्रल गवर्नमेंट for what? For the approval of the construction of this project. Which project? This project. अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दीजिए, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ऑन कावेरी रिवर। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रिवाइज जरूर करना, अदरवाइज मिस हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल टनल। अटल टनल ये भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स यस, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। The tunnel is built in the Dhauladhar range of the Himalayas. This one is incorrect because this tunnel is built in the not Dhauladhar. This one is in Pir Panjal range. हिमालय की जो पीर पंजाल रेंज है, एंड पीर पंजाल, आप जो हिमालय की रेंजेज है उनके बारे में, सबके बारे में ज़रूर पढ़ना। लास्ट इसको अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, ये अटल टनल को, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे है। एंड दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास। हिमाचल प्रदेश रोहतांग। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि साल में 6 महीने ट्रैफिक जाम रहता था बर्फ़ वगैरह की वजह से, और 6 महीने ही आना जाना रहता था, और बाकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब वो सब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो इसके बनने से नहीं आएंगी। एंड इट कनेक्ट्स सोलांग वैली नियर मनाली टू सिसु इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला आपको ये पता हो गया कि ये पीर पंजाल रेंज में है, हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास, और किसको कनेक्ट करता है? सोलांग टू लाहौली एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको कनेक्ट करता है। सोलांग वैली टू लाहौल एंड स्पीति। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और इसकी लेंथ कितनी है इस टनल की? 9.02 किलोमीटर। दैट्स वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। और उससे भी इंटरेस्टिंग क्या है कि इसका जो एल्टीट्यूड है 3000 मीटर्स। हिमालय पे इतनी हाइट पे काम किया है इस टनल को बनाने के लिए। अप्रोक्सीमेट 10,000 फीट फ्रॉम द MSL मीन सी लेवल से अप्रोक्सीमेट 10,000 फीट पे बनाया है इसको। और इट इज़ बिल्ट विद द अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि यहाँ इतनी हाइट पे काम करना आसान नहीं होता है। आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following institutions are not a part of prize awarding institutions responsible for the selection of Nobel Prize candidates? Not a part, इनमें से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है कैंडिडेट्स को, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? फर्स्ट वन, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। सो अगर आपको पता नहीं है, आप ये ज़रूर पढ़ना इनके बारे में। दिस इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विथ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये डिपार्टमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज नॉट
associated with Nobel Prize? The Royal Swedish Academy of Science. Royal Swedish Academy of Science, Nobel Prize in Physics, Chemistry, यही अकेडमी डिसाइड करती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज के लिए। थर्ड वन, द स्वीडिश अकेडमी। द स्वीडिश अकेडमी, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसके लिए दिस वन इज रेस्पॉन्सिबल। सो question is asking which is not a part, this one is not a part of Nobel Prize award winning institutions। और जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है उसका भी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तीनों का ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ही डिसाइड करती है। Next, with reference to Nobel Prize for Peace, consider the following statements। Nobel Prize for Peace की बात करते हैं। कैलाश सत्यार्थी was the first Indian to win the Nobel Peace Prize। Malala Yousafzai is the youngest person till date to win a Nobel Prize for Peace। International Committee of the Red Cross has been awarded the Nobel Peace Prize 3 times। So Kailash Satyarthi was not the first Indian to win this Nobel Peace Prize। Who is the first Indian to win Nobel Peace Prize before Kailash Satyarthi? Mother Teresa won the Nobel Peace Prize in 1979। Mother Teresa won this prize। Malala Yousafzai, yes, of course, she is the youngest person। International Committee of Red Cross has been awarded Nobel, yes, it has won 3 times। So second and third are the correct one। मदर टेरेसा को कैलाश सत्यार्थी से पहले 1979 में मिल चुका है नोबेल प्राइज फॉर पीस। शी वाज द फर्स्ट इंडियन। With reference to Enigmachana Golum, consider the following statements। So this one is associated with the family of fish called dragon snake head। इसके बारे में आप पढ़ना। It remains hidden for 100 million years, look like a dragon and swims like an eel। The fish was discovered in the watery underground rocks। Okay, so और इसीलिए इसको नाम दिया गोलम, क्योंकि रॉक्स में वाटर अंडर वाटर रॉक्स में पाई जाती है फिश है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following institutions release Global Hunger Index? Global Hunger Index कौन रिलीज करता है? So Global Hunger Index is released by Worldwide and Wealth Health। This one is the correct one। This one is the correct answer। This is release each year, हर साल ये रिलीज किया जाता है। एंड फर्स्ट टाइम इसको 2006 में रिलीज किया था, और अभी जो रिसेंटली इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई है वो रिलीज हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर 2020 के डेटा हैं। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है
सॉरी 94 है, 94 आउट ऑफ 106, बहुत सीरियस मैटर है, बहुत पुअर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, मालिकाना हक जिसको बोलते हैं, स्वामित्व स्कीम। It was launched on 24th April 2018 on the occasion of National Panchayati Raj Day. Okay. The main purpose is to provide rural people with the right to document their residential properties. So, which one is the correct one? This one is the correct one. This one is incorrect. बिकॉज जो नेशनल पंचायती राज डे है, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th April एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन, स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 24th April 2020, not 2018. It is the initiative of Ministry of Panchayati Raj. Next questions. The Sitwe port recently seen in news is a project to connect India with Myanmar. आप इसके बारे में और पढ़ना, इसका मैप वगैरह में देखना सिटवे पोर्ट कहाँ है, इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। With reference to time use survey, consider the following statements. It is implemented by Ministry of Science and Technology. This one is incorrect. India's first time use survey was calculated for the period January to December 2019. Yes, this one is correct. अभी फर्स्ट टाइम आया है ये टाइम यूज सर्वे, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये ऑफिस किसके अंडर में आता है? नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स and program implementation. India's first time use survey for the period of January to December 2019. ये ध्यान रखना, आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेगा आपको देखने। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Okay, which of the given statements is not correct? We have to identify incorrect about quadrilateral security dialogue QSD. आपने काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे, लास्ट 2 years में एक कॉमन टर्म सुना होगा आपने, क्वाड, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि ये है क्या। इट कंप्राइजेज 4 कंट्रीज, इंडिया, US, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड बनाया है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है, सो चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ इट। इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया ये इसके
मेंबर हैं, लेकिन चाइना नहीं है। जापान इज द मेंबर ऑफ क्वाड। अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री जिसके मेंबर हैं। In 2008, Australia withdrew itself from quadrilateral over diplomatic protest from China. Yes, this one is correct. This one is incorrect. आपको ध्यान रखना है, क्वाड ये एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। देखिए ये काफ़ी एक मैजिकल कह सकते हैं इस तरीके का है कि एक ब्रिज है और उसके नीचे से अगर कोई जहाज निकल रहा है तो उसको उठाया जा सकता है, अपलिफ्ट किया जा सकता है उस ब्रिज को। जैसे ही जहाज निकलेगा ये अपलिफ्ट हो जाएगा, वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक तरीके से काफ़ी इनोवेटिव है। ये ऐसा पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है और वो भी रेलवे सी। और ये किसको कनेक्ट करता है? मंदपम इन मेनलैंड इंडिया विथ पंबन एंड रामेश्वरम। ये कनेक्ट करेगा मंदापम टू, ये इंडियन मेनलैंड में है, विथ पंबन एंड रामेश्वरम। दिस इज पंबन ब्रिज। और पंबन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु। आपको ये ध्यान रखना है इसके बारे में, और आप थोड़ा सा पढ़ना। पंबन ब्रिज काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया है इस ब्रिज में। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3rd। पार्ट 4 will coming soon. If you find useful these MCQs, please do like, share and subscribe the channel. All the very best. Thank you.